हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। वेलकम टू घटना चक्र ज्योग्राफी। दिस इज अवर 22nd लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी 21 लेक्चर्स हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। घटना चक्र ज्योग्राफी की ये जो सीरीज लेकर आए हैं उसका मेन गोल यही है कि आपको एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से डेवलप कराई जाए, एज वेल एज जो पीवाई क्यूज पूछे गए तो उसका एक ओवरव्यू आपको मिल पाए कि जिससे आप क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये ध्यान रखें। फिर आपको आइडिया है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें ध्यान आए, इस वजह से ये सीरीज लाई गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं टॉपिक। ठीक है, इरिगेशन एंड कैनल। ठीक है, इंडिया इज सिचुएटेड इन द सब ट्रॉपिक क्लाइमेटिक एरिया। मैक्सिमम एरिया ऑफ द कंट्री कितना है? मैक्सिमम एरिया ऑफ द कंट्री कम्स अंडर द हाई टेम्परेचर जोन एक्सेप्ट फॉर द वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न असम, मेघालय, some parts of southern India. The high evaporation occurs due to the high temperature. Therefore, there is a need of irrigation to fulfill the deficit of the moisture in the sown crop. ठीक है, in 2018-2019, the tube well was the primary source of the irrigation in our country. 48.51% of the total irrigated area by tube well. Both the tube well and the well irrigate 63.94% of the total irrigated area of the country. 22.96% of the irrigated land is irrigated by the canal, and 22.33% by tank. Remaining irrigated land is irrigated by the other means. Indian irrigation project can be classified into three groups. First is minor group, that is minor irrigation project less than 2000 hectare. फिर क्या बोला गया है कि area that is irrigated under the project less than in this include tube well, wells, pond, pump set, drip irrigation, sprinklers, etc. Minor irrigation project is fulfill about 62 point of the demand for the for irrigation in India. Medium irrigation project, that is 2000 to 10,000 hectare areas is irrigated under this project. Major irrigation project क्या बोला है कि more than 10,000 hectare area is irrigated under this project. 38% of the need of irrigation of the country is fulfilled by the major irrigation project. ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि Genk Canal क्या है? Is the world's oldest and most developed canal. It was constructed in the year 1927 by Shri Gang Singh and the Maharaja of Bikaner. It arose in the Husainiwala near the river of Satluj or from Firozpur. The eastern Yamuna Canal originates in the left bank from the Najewan. The length of the main canal is 197 kilometers. This canal system provides irrigation facility to Hindon, Yamuna, Doabia, Saharapur, Muzaffar, Meerut, and Ghaziabad. After its revival, the canal started functioning in 1830 AD. ठीक है, फिर क्या? Its canal started functioning in 1830 AD. At the time of water discharge from its canal was about 800 cubic. In the meanwhile, this was increased to about 4,000 cubic. To solve this problem, Hathinikund barrage, that is Haryana, has been constructed about 3 kilometers from the Tajewar. The construction of Upper Ganga Canal was during the
period of 1842. The P.T. Ketley was the father of this project. The water was discharged for the first time on April 8, 1854 in this canal. It starts from the place called Bhimkoda of the Haridwar on the right bank of the river Ganga. The length of the main canal is 298 kilometer and the total length of this canal is 6496 kilometer. ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि इरिगेशन फैसिलिटीज is being provided by Haridwar, Sarapur, Muzaffarnagar, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahr, Aligarh, Etah, Mathura, Firozabad, Manipur, Agra, district of all the main Puri, Agra district by canal system. Initially, this canal system was also used for waterways. In addition to the irrigation, 200 cubic of the water from the canal system has been provided to the Delhi, and 100 cubic water is given to the Hardu-Ganj thermal power plant. Sharda Major Canal has been constructed on the right bank of the Sharda River near the Banbasa in Nainital in the order to provide protective irrigation facility to the district Pilibhit, Bareilly, Lakhimpur, Kheri, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Lucknow, Barabanki, Raebareli, Pratapgarh, Sultanpur, Jaunpur, Azamgarh, Ghazipur, and Prayagraj. ठीक है, the length of the main canal is 44.3 kilometer and the total length of the Sharda canal system is 9961.3 kilometer. The lower Ganga canal starts from the Narora, that is Bulandshahr. Its construction was completed in 1878 AD. The length of the main canal is 98.8 kilometer and the total length of the canal system is 8 to 78 kilometer. ठीक है, the foundation stone of Indira Gandhi Canal project was led by the Home Minister Govind Vallabh Pant in 1958. It originates from the Harike Dam situated at the confluence of the Satluj and Bias. तो ये भी important है, याद रखना. River in Punjab. It's world's largest canal project. Its total length is 649 kilometer. The canal mainly irrigates the Ganganagar, Bikaner, Jodhpur, and Jaisalmer district of the western Rajasthan. Under the Gandak project, the 740 km long barrage was built near the Triveni Ghat or the Gandak River. The construction of the Farakka barrage was done with the year 1975 with the aim to stop the accumulation of the silt of the Hooghly River. 4,000 cubic Ganga River was turned into towards the Hooghly River by the canal from the right bank of the barrage. फिर क्या बोला कि 10 irrigation projects have been completed in the Bharatpuzha river and its tributary is Palakkad in Kerala. Mangalam irrigation project is one of the garland fill canal system was proposed by the Captain Dinshaw J. Dastur, whereas the idea of linking of the river was first proposed by the irrigation engineer Vishweshwarya. The name of the K.L. Rao are added to it. The first Prime Minister Atal Bihari Vajpayee inaugurated the development plan of Hariyali related to the water storage of the January 27, 2003. Under this project, people are encouraged to conserve the water in the rural area. On 1st July 2015, the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana was approved for the reduction of the dependence of agriculture on the monsoon and providing the irrigation facility to the every farm. The Rural Development of Ministry of Government of India introduced the three watershed development program till 2008. Program includes the Integrated Water Development Program. Second is drought prone areas and program, and third is desert development program. This program was brought under the comprehensive program known as Integrated Watershed Management Program. This main source of irrigation is peninsular India and is pond. Since ancient time, pond have been used for irrigation in this area. The land of peninsular region is rocky, therefore it is not possible to construct the canal and the well easily. फिर क्या बोला है कि river of peninsular in India are seasonal, due to which there is a lack of water availability of the canal. In this case, the pond exists in the main means of irrigation UP Punjab. फिर क्या बोला गया UP Punjab. Madhya Pradesh and Maharashtra are the major region in the term of the water resource available for irrigation. UP percentage कितना है? Under the UP is ट्यूब वेल ज्यादा है 74%, कैनल 15% है, वेल 8.8% है और टैंक जो है वो 0.6% है. ठीक है, ट्यूब वेल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द इरिगेशन इन द यूपी. देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पट्टी सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. तो क्या आएगा? कृष्णा एंड गोदावरी. ठीक है, याद रखना पट्टी सीमा प्रोजेक्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? कृष्णा एंड गोदावरी. बीपीएससी 2022 में रिसेंटली पूछा गया सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच?
कौन सी करेक्टली मैच नहीं है? तो क्या आएगा, जवाई प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में नहीं, जवाई प्रोजेक्ट ऑफ द जवाई रिवर is on the tributary of the Luni in Rajasthan. One of the Ukai Canal dam was undertaken by construction a dam across the Tapi River in Gujarat. Ghat Canal project is located in Karnataka, and Ghat is situated at Ghat and the Nira Canal project is in Maharashtra on the Nira River, a tributary of Bhima. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, गिवन बिलो द स्टेटमेंट और वो करना है. One of the major source of irrigation is of peninsular India is pond. The second बोला है कि most of the river of peninsular are seasonal. तो ये तो दोनों true है. तो R is the correct explanation of A. ठीक है. फिर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर one major sources of the irrigation in peninsular India, pond irrigation was undulating relief and the hard rock, making it difficult for them to dig canal and wells. The assertion is correct, and the peninsular region is a seasonal and dry during the summer season, so they cannot supply the water of to canal. Therefore, the main source of irrigation is pond. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है कि विथ रेफरेंस टू द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा नॉट करेक्ट है ऐसा पूछा गया है. ठीक है, तो नॉट करेक्ट में क्या आएगा, a dominant source of irrigation in the country are wells. ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है. बोला है कि वन थर्ड ऑफ द एरिया इस ऑफ द कंट्री रिकॉर्ड 750 mm ऑफ एनुअल रेनफॉल. फिर बोला है कि एलुवियल सॉइल, ये करेक्ट स्टेटमेंट था. एलुवियल सॉइल इज प्रेडोमिनेंट इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द कंट्री, ये भी सही था. द माउंटेन एरियाज अकाउंट फॉर द अबाउट 30% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये भी सही था, आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द total cropped area under the irrigation is 20 in 2011 is the highest. तो कौन सा स्टेट था, हरियाणा. अभी क्रॉप का पूछेंगे कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और फिर महाराष्ट्र. अकॉर्डिंग टू द सेंसस क्या हुआ था कि क्रॉप्ड अंडर द इरिगेशन, चंडीगढ़ 100% एंड पंजाब इज द सेकंड 99.6%. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है कि विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन परसेंट. तो क्या आएगा इसका, पंजाब. उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेवन विद रेफरेंस टू द माइक्रो इरिगेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो क्या बोला है कि ट्रू कौन सी है, तो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. फिर क्या बोला है कि इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई फार्मिंग, लैंड फार्मिंग. और थर्ड क्या बोला है कि इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग रिकॉर्ड रिसीडिंग द ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी चेक्ड. तो इसका क्या आएगा, सी. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स एट क्वेश्चन. लाइफ सेविंग प्रोटेक्टिव इरिगेशन रिफर्स टू किस चीज को रिफर करता है ये, तो PWP irrigation. ठीक है, permanent wilting point is the extent of any moisture in is no longer available to the sufficient quantity plants or sustain. Question number 9 क्या बोला है, during the last 25 years the development of the tube well irrigation has been most spectacular in. कहाँ पर spectacular है, तो क्या आएगा, सरयू पर plains में. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज इरिगेटेड इन ट्यूबवेल, यूपी. क्वेश्चन नंबर 11 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर द ट्यूबवेल इरिगेटेड इज लार्जेस्ट, क्या आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन. द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ट्यूबवेल एंड द वेल इरिगेशन इज, कौन सा है, यूपी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेबल्ड 1 2 3 4. क्या करेक्ट सीक्वेंस क्या है, लेबल जो दिया है उसमें ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए कौन सा आएगा, तो फोर्थ मतलब यहाँ पर, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. गार्लन कैनल सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा, दिनशो जे दस्तूर. ठीक है, गार्लन ये प्रपोज करा गया है दस्तूर से. द थॉट ऑफ द रिवर लिंकिंग वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द इरिगेशन एंड विश्वेश्वरैया, लेटर के एल राव
proposed another project of river interlinking. Then question number 15 क्या बोला है कि who agreed as a pioneer of the irrigation war in South India? तो क्या आएगा? Sir Arthur Cotton. Sir Arthur Cotton was the first irrigation. Number 16 क्या बोला है? Maximum irrigation potential of India is created through कैसे तो मैं वापस नहीं जाऊंगी. Now moving towards another question, that is question number 17. Water carrying capacity of the Farakka Canal. कितनी है water carrying capacity अपनी? 40,000 क्यूसेक. ठीक है. फरक्का बैरेज जो होता है वो फरक्का मुर्शिदाबाद की बात है. वेस्ट बंगाल जो होता है डिजाइन करता है टू सर्व द नीड ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ कलकत्ता पोर्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या आएगा? केरला. In Palakkad district of Kerala, 11 irrigation project of Bharatpuzha river and the tributary has been completed. The Saran irrigation canal is drawn from which of the following? तो क्या आएगा? गंडक. 740-meter long barrage. It has been seen across the Gandak river in the Balmiki Nagar and from where the few canal have been drawn. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला? इंदिरा गांधी कैनल एज ए सोर्स. तो क्या आएगा इसका आंसर? इंदिरा गांधी कैनल सोर्स है किसका? सोर्स है हरि के बैरेज का. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. हरिके बैरेज कहाँ पर आएगा? याद रखना हरिके बैरेज किसके बीच में? बियास एंड सतलज. क्वेश्चन उत्तराखंड की एग्जामिनेशन में आया था. क्वेश्चन नंबर 24 क्या 22 क्या बोला है? राजस्थान या इंदिरा गांधी कैनल वाज ओरिजिनेटेड. राजस्थान इंदिरा कैनल ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से ओरिजिनेट हुई? बियास एंड सतलज से हुई है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी कैनल started in the year 1958 and its origin is from now हरिके डैम ऑन द सतलज. ठीक है. इंदिरा गांधी कैनल रिसीव्स द वाटर सप्लाई दैट इज बियास रावी चेनाब झेलम सिंध. तो इसका क्या बोला है कि आंसर कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ये बियास रावी और सतलज. ठीक है. यूपीपीसीएस में जीआईसी में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट यूटिलाइजेस वाटर ऑफ पोंग बैरेज ऑफ द बियास रिवर. ठीक है. क्या आएगा इसका आंसर? इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट. Question 26. Which one of the most developed, the oldest canal system of the world in India? कौन सी है? गंग कैनल. ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन अपन ने ऊपर ही पढ़ा था. गंग कैनल विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट कैनल कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गण सिंह जी. कब बनाई थी इन्होंने? 1927 में. क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शारदा ट्रिब्यूटरी कमांडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सेकंड बोला है टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द लैंड यूज बाय मल्टीपल कल्टीवेशन. और थर्ड बोला है कि रिफॉर्म ऑफ द लैंड मैनेजमेंट. ठीक है. इसका आंसर क्या है? डी. डी मतलब ऑल ऑफ द अबव. Which one? Question number 29. Which one of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो गजर वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन गांधी इंदिरा गांधी कैनल. ठीक है. वो गलत स्टेटमेंट है. आईएएस प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 30 का क्या बोला है? लोअर गंगा कैनल इज टेकन आउट ऑफ द गंगा किस नाम से? नरोरा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 ये यूपीपीसीएस पीएससी में आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल सिस्टम इरिगेट्स द एरिया ऑफ बिहार? क्या आएगा? त्रिवेणी कैनल. क्वेश्चन नंबर 32. हरियाली इज अ न्यू स्कीम फॉर किसके लिए है? तो इसका आंसर क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड के लिए. ठीक है. उत्तराखंड में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 33. हरियाली योजना इज रिलेटेड टू किससे जुड़ा हुआ है? डी. डी मतलब वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इरिगेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम? प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल रन ऑफ. सेकंड बोला है लिंकिंग ऑफ द कंट्रीज पेरिनियल
रिवर एंड सीजनल रिवर। थर्ड बोला है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड लेवल रिजेक्शन ऑन द। फिर बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्स इम्प्लीमेंटेड थ्री watershed program, that is integrated watershed development program, drone prone area and desert development program, and there are merged with the under the comprehensive program under the IWMP is in a February of 2008 done। फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द बाय प्रेजिंग अ ड्रिप इरिगेशन को एडवांटेज बता करके क्या मिलेगा, मतलब क्या प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। तो बोला है कि फर्स्ट रिड्यूस ऑफ द वीट, इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। तो आएगा इसका फर्स्ट फर्स्ट मतलब रिडक्शन और इनविन, और बोला के रिडक्शन ऑफ द सॉइल इरोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बंकिंगहम कैनल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या आएगा कोरोमंडल कोस्ट, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट कंजम्पशन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया। क्या आएगा इसका एग्रीकल्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे जुड़ा हुआ है, यमुना और गंगा वाले रीजन से। ठीक। टॉपिक इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है। तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का क्या बताया गया है, नर्मदा इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया। 1945-46 से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, वाज ड्राफ्टेड फॉर द इरिगेशन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड मैनेजमेंट इन द नर्मदा। इन प्रोजेक्ट 30 लार्ज 180 135 मीडियम and 3,000 small dam and the barrage of the Narmada are its tributaries were thus declared to be the constructed. Sardar Sarovar project has been established at Narmada River in Gujarat. It will produce in 1450 megawatt of hydroelectricity. 57% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो मध्य प्रदेश से होती है। बेनिफिशियरी जो स्टेट है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी है। मेधा पेटकर नर्मदा क्या लिखा है, धारंग्रस्त is the February 1986 with the objective of posting this project. In 1989, several local administration merged and named it Narmada Bachao Andolan. Narmada Sagar project is also known as Indira Sagar Dam. The dam is situated near the Khandwa district of MP in Tamil Nadu. The target of the irrigation is 1.23 lakh hectare and 1,000 uh, and 1,000 production of the electricity has been megawatt of production of electricity has been set. There are several projects in Narmada Valley such as Tawa, Barna, Kolar, Sukta and Matiyar project. The irrigation capacity is 3,98,300 hectare of the land has been attended through this project. 13.50 megawatt of electricity was produced in the Tawa project. Various project has been started at the tributaries of the Narmada River, like the Men project at the river Men. फिर बोला है कि चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट एट हतानी रिवर एंड अपर वेदा प्रोजेक्ट इन द रिवर वे। फिर क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आर कौन से स्टेट है, तो गुजरात आएगा, एमपी आएगा, महाराष्ट्र आएगा, राजस्थान आएगा। ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा गया था 1996 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सरदार सरोवर डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कौन से पर कंस्ट्रक्ट करा गया है, नर्मदा। ठीक है। यूपीपीसीएस में 1992 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद द सरदार। वापस वही क्वेश्चन है, क्या आएगा इससे रिलेटेड, नर्मदा। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैक्सिमम बेनिफिट ऑक्यूपाइंग स्टेट बाय सरदार सरोवर डैम इज कौन सा है, गुजरात, नहीं एमपी। ठीक है। एमपी गेट्स 65% ऑफ द वाटर ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। क्या आएगा इसमें, मेधा पटकर। मेधा पाटेकर is the social activist who has led the struggle of people affected by the Sardar Sarovar project of the Narmada River in the Gujarat. She is founded in Narmada Bachao Andolan. फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। कौन था अगेंस्ट द सरदार सरोवर, मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर सिक्स किया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिवर नर्मदा।
नर्मदा से कौन से नहीं जुड़ा हुआ था, तो बन सागर, ठीक है। बारगी ओमकारेश्वर इंदिरा सागर डैम आर अमंग द सीरीज ऑफ 30 मेजर डैम इन द रिवर नर्मदा। द बेन सागर डैम इज लोकेटेड इन द सोन रिवर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इंदिरा गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर, क्या आएगा इसका आंसर, नर्मदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वॉयर हरसुद टाउन ऑफ एमपी हैज बीन सबमर्ज्ड। यूपीपीसीएस में 2003 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। Now question number 9. Which one of the following river is Omkareshwar temple associated? तो नर्मदा आएगा। Raising the height of the which dam is being opposed by नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सी उसका हाइट बढ़ाने के लिए अपोज में चल रहा है काम, तो सरदार सरोवर, ठीक है। एमपीपीसीएस में पूछा था 2016 में। देन फिर क्या बोला है कि ये सब एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी अपन को दिखा हुआ है। नेक्स्ट इज भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड टॉपिक इज भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ द पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। कहाँ पर देखने मिलता है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। अंडर दिस टू डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड नियर भाखड़ा and Nangal on the Satluj River. The construction of the Bhakra Dam was compiled in 1962. ठीक है। फिर क्या बोला, this dam has been constructed 80 kilometers away from the north of the Ambala as Satluj River. The command region of Bhakra Nangal is expanded in Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan. Water storage of this dam is Gobind Sagar Lake, ठीक है। फिर क्या बोला है कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है वो कौन से राज्य में आता है, तो हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, ठीक है। बीपीएससी में पूछा था, यूपीपीसीएस में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, विच ग्रुप ऑफ द स्टेट रिसीव्स द वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, क्या आएगा इसका आंसर, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द रिवर द भाखड़ा नागल डैम बिल्ट, कौन सी पर बंधा था बिल्ट, तो सतलज पर बंधा था, ठीक है। थर्ड क्या बोला है कि डैम एट द रिवर option third, dam at River Kaveri. The development of the hydroelectricity power last decade in 19th century. In 1895, hydropower plant has planted Sindrapong for electricity such to Darjeeling. It is the oldest hydropower plant in India. The second oldest hydropower was Shiv Samudram on Kaveri River in Karnataka 1902. Shiv Samudram ancient place in the located of the Kaveri Doab near 50 kilometer of northeast of Mysore. Here, the Kaveri, appear to be Great Lake in the morphology of the Krishna Sagar Dam is also situated at the Kaveri River, Karnataka. The DPR on a profile of the has been observed that it is M. Vishweswarya. Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Puducherry are the party in Kaveri dispute. Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and Puducherry are the party. According to the decision of the Supreme Court, of the total 740,000 million cubic feet for the Kaveri River Basin, 30,000 million cubic led to the Himalaya. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर रहता है, कर्नाटका में। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या आएगा, तमिलनाडु। कावेरी रिवर वाटर जो किसके किसके बीच में है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। डन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड द कर्नाटका इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। Nagarjuna Dam, Sagar Dam is situated in which of the following river in state in India? नागार्जुन सागर कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि नागार्जुन सागर इज लोकेटेड टू विच ऑफ द रिवर, तो क्या आएगा, नागार्जुन सागर कौन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, नागार्जुन सागर लाइज ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या आएगा, कृष्णा रिवर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच ऑफ द रिवर, कौन सी रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोला है कि नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आज अपन लोग इतना रखते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।